Good morning student, class 10th. Students, in last class we were studying about holozoic nutrition in amoeba. I hope you all are attending the class. It is very important. Students, along with holozoic nutrition in amoeba, there is holozoic nutrition in human being also present in your syllabus, which is also very important. Students, this phenomena of holozoic nutrition I will explain the holozoic nutrition with the help of diagram. All these 5 steps you are already known what happened in these five steps of holozoic nutrition. Again revise. Ingestion is the intake of solid food material inside the body. Digestion is the breakdown of food material into its smallest part. Absorption is the separation of nutrients from the food material, which ready to the distribute in their required place. And assimilation is what? Distribution of nutrients in the whole body is actually called assimilation. And egestion is the removal of waste material from the body is called egestion. These 5 steps will explain with the help of a complete diagram of holozoic nutrition in human being. Now let us start to draw the diagram and explain each steps with the help of diagram. But students, you may proceed your explanation with the help of diagram and notes. Both these written material and diagram material is present in your notebook, must be required. तो स्टूडेंट्स, जब आप नोटबुक बनाएं इसका, तो डायग्राम के साथ साथ उसमें हर एक स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उनको आपको एक्सप्लेन करके लिखना भी है। तो स्टूडेंट्स, पीडीएफ की हेल्प से आप इसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ज़रूर राइट करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। सो स्टूडेंट्स, देखिए वो क्या हो रहा है डायग्राम में। Students, if we draw the complete digestive system of human being, then you must draw the diagram. Students, this is the mouth cavity. This is the mouth cavity, and this is the trachea. That means food pipe. It is the mouth cavity. It is the food pipe. इसको हम लोग इसोफेगस बोलते हैं या फूड पाइप बोलते हैं। दिस फूड पाइप इज डायरेक्टली ओपन इनटू द स्टमक। सो दिस इज द स्टमक। दिस इज द स्टमक, which stomach is directly connected with the small intestine with the help of this tubular structure, which is called duodenum. It is called
called duodenum and it is the stomach. And there is the part of your digestive system which is open outside. So if you see the diagram, complete diagram, that is the this is the opening of your digestive system of the body. Students, this is the large intestine, and this duodenum is directly open into small intestine. This is the small intestine, which is directly open into small intestine. So students, it is the complete diagram of your alimentary canal or of digestive system. This is the mouth cavity. This is the mouth cavity, which is also technically termed as buccal cavity. इसको हम लोग buccal cavity भी बोलते हैं स्टूडेंट्स. वेयर इंजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे इंजेशन होता है. सॉलिड फूड मटेरियल को हम लोग अंदर रखते हैं, फूड मटेरियल को माउथ में रखते हैं और उसको फिर हम लोग चीव करते हैं, उसको चबाते हैं. जब आप इसको चबाना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे माउथ में सलाइवा रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. एट दैट टाइम salivary gland is stimulated and release the saliva. Saliva is chemically basic in nature. Saliva is what? Saliva is basic in nature. Chemically it is a base. Saliva क्या है स्टूडेंट्स? ये एक टाइप का बेस है जो हमारे माउथ में रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. दिस सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट व्हेनेवर फूड मटेरियल रीचेस इन द माउथ कैविटी. जब फूड मटेरियल हमारे माउथ कैविटी में रीच होता है, पहुंचता है, तो चीविंग की फिनोमेना के साथ साथ सलाइवेशन हमारी माउथ में होता है और ये सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड की हेल्प से रिलीज होता है, जो कि केमिकली बेसिक नेचर का होता है. सो स्टूडेंट्स, दिस सलाइवा व्हेन मिक्स्ड विद द फूड मटेरियल, देन फूड मटेरियल कन्वर्टेड इनटू small parts with the help of teeth. स्टूडेंट्स, जब हम फूड मटेरियल को माउथ में इनटेक करते हैं तो सलाइवेशन की वजह से फूड मटेरियल गीला होता है और टीथ की हेल्प से वो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होता है. स्टूडेंट्स, इन दिस फंक्शन ऑफ इंजेशन, students, I tell you that in food material there are 5 type of nutrients are present, that is carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. These 5 type of nutrients are actually present in our food material, which must be digested with the help of our digestive system. Students, in our digestive system there is a small gland is present which is called pancreas. ये pancreas है जो यहाँ हमारे digestive system में present है, and that point
It is very important. That point, organ of our body is also present, which is called liver. Liver is the largest digestive gland of the body, in which gallbladder is present. It is gallbladder. It is gallbladder which is present, which is situated in the liver. Students, there is the 3 type of juices are released for the digestion of food material. These 3 type of juices are termed as actually liver release bile juice, liver release bile juice, stomach release gastric juice, pancreas release pancreatic juice, and intestine release intestinal juice. So students, there is the 4 type of juices released in our digestive system. Four type of juices released in our digestive system. This is the bile juice, which is released by liver. This is the gastric juice, which is released by stomach. And this is the pancreatic juice released by pancreas. And this is the intestinal juice released by small intestine. These 4 type of juice play very important role in the complete digestion of food material. Now, the holozoic nutrition involves 5 steps. The first step is ingestion, which takes place in the mouth cavity, where saliva release. The saliva actually contain an enzyme which is called salivary amylase. Saliva contain salivary amylase. So these ingestion, the salivary amylase of the saliva is responsible for starting the digestion of carbohydrate. स्टूडेंट्स, सबसे पहले ओवरऑल हम लोग इस फिगर को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग कंप्लीट डाइजेशन को एक बार फिर से मिक्सअप करते हुए सारी बातें हम लोग समझेंगे। अभी आप ये देखिए, ये माउथ कैविटी है जहाँ पे हम लोग फूड इंटेक करते हैं और उसको चीव करते हैं और उसमें सलाइवा मिक्स होता है। वो सलाइवा जब हम लोग फूड मटेरियल को निगल जाते हैं तो फूड पाइप में पहुंचता है फूड मटेरियल, जिसको हम लोग टेक्निकली इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस से होता हुआ फूड मटेरियल यहाँ पहुंचता है स्टमक में, सेकेंड साइट ऑफ द फूड मटेरियल विच इज स्टमक।
ये एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें फूड मटेरियल की इंटरमिक्सिंग होती है। ये इंटरमिक्सिंग क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स? क्योंकि जब हम लोग फूड मटेरियल को चीव करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि हम लोग प्रॉपरली फूड मटेरियल को चीव नहीं करते, कायदे से उसको हम लोग चबाते नहीं हैं। जल्दीबाजी में फूड मटेरियल को चबा करके हम लोग ज़बरदस्ती पानी की हेल्प से या वाटर की हेल्प से हम लोग उसको फूड पाइप में सेंड कर देते हैं। अब वो फूड मटेरियल जो पार्शियली ब्रेक डाउन है उसका जब तक कि कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक वो डाइजेशन की प्रोसेस में इंटर नहीं करेगा। तो डाइजेशन इज़ द फिनोमेना ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल इनटू इट्स स्मॉलर पार्ट। तो ये डाइजेशन है जो स्टमक में देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ये पूरा कंप्लीट डायग्राम आप देख रहे हो, दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ऑल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज टेक्निकली कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। जो पूरा ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमारे लास्ट से फर्स्ट एंड से लास्ट एंड तक प्रेजेंट है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। इसी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। और इसमें न्यूमरस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं। उसमें से एक ऑर्गन माउथ है, दूसरा ऑर्गन ये स्टमक है, तीसरा ऑर्गन लिवर है, चौथा ऑर्गन गॉल ब्लैडर है, पांचवा ऑर्गन पेनक्रियाज है और इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये सभी ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन की फिनोमेना को कंप्लीट होने में हेल्प करता है। तो फूड मटेरियल स्टमक में आ जाता है। स्टमक के बाद फिर ये डियोडिनम से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। डियोडिनम सी शेप स्ट्रक्चर है जिसमें दो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, एक तो लीवर प्रेजेंट है और दूसरा पेनक्रियाज प्रेजेंट है। जब फूड मटेरियल यहाँ से पास होता है स्टूडेंट्स तो इन दोनों का जो जूस है, बाइल जूस यहाँ से रिलीज होता है और पेनक्रियाटिक जूस यहाँ से रिलीज होता है। फूड मटेरियल में जब मिक्सअप होता है तब फूड मटेरियल फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। अब स्टूडेंट्स लीवर की बात करें, लार्जेस्ट ग्लैंड है आपके बॉडी की जो बाइल जूस रिलीज करती है। अब ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में आकर के स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर इज द ऑर्गन विच इज एम्बेडेड इनसाइड द लीवर इन विच बाइल जूस इज स्टोर्ड टेम्परेरली। व्हेनेवर फूड पास फ्रॉम दिस पाथ, जब भी फूड मटेरियल इस पाथ से पास होता है then bile juice, stored bile juice which is present in the gallbladder is released in the food material. What is the chemical nature of bile juice? It is salty nature. ये salty nature होता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जब ये फूड मटेरियल यहाँ से पास होता हुआ यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पेनक्रियाटिक जूस प्रेजेंट है। पेनक्रियाटिक जूस इसमें मिक्सअप होता है, देन फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। अब स्टूडेंट्स इस फिनोमेना में जब फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है स्टूडेंट्स? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये बातें हम लोगों ने देखा। लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड मटेरियल इजेशन के लिए लास्ट स्टेप के लिए पहुंचता है तो वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वो फूड मटेरियल वहाँ एलोकेट होने लगता है। तो 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग इंजेशन विच इज टेक्स प्लेस इन द माउथ कैविटी, डाइजेशन विच इज टेक्स प्लेस इन द स्टमक, and complete digestion and absorption of the nutrients takes place in the small intestine.
and assimilation, digested food material reaches in the body and egestion is the outside the body. So all phenomena include these 5 steps, which also explained in the next class with the help of enzymatic role and role of different type of juices in the phenomena of digestion. Okay students, नेक्स्ट क्लास में आप रेगुलर कंटिन्यू करिएगा, इस प्रोसेस को हम दोबारा फुल एक्सप्लेन करेंगे कैसे डाइजेशन कंप्लीट होता है. ओके.